Hi, my name is Lakshay Deda, and you are watching me on the Showbiz. हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्टर लक्ष्य डेरा से, जो जल्द ही एक नई मूवी हिंदुत्व में नजर आने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं लक्ष्य के साथ हुई पूरी बातचीत। So, welcome to Just Showbiz. Myself, Tanisha Chitranj. How are you? I'm really good. How are you? I'm good too, sir. Thank you. So, how was your day? My day was great. Actually, my days are same or similar every day, I guess. Like it's like हर चीज का routine है, टक 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 टक, and it's like continuous every day, same day, mostly. Okay. So, congratulations for your new release. So, Thank you so much. okay, yeah. So, what was the feedback you received from your fans and near ones? Actually, I wasn't expecting this much because uh, I was not sure after the edit and all how will it come out and all. And secondly, मैं अपने शॉट्स कभी नहीं देखता, मतलब एक बार शॉट देख दिया, आई गेट वेरी कॉन्शियस बहुत ज्यादा, तो मैं कभी भी शॉट नहीं देखता। तो जब मैंने खुद मूवी देखी तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज सीइंग माय वर्क माय सेल्फ। एंड apart from that, what I got reviews and जो मैंने सुना was कि villain side को ज़्यादा पसंद करा गया था, so that was automatically you know एक appreciation as a newcomer, as first film, like people were liking villain more than a hero, so that was really great. And yeah, even on Twitter also, like there were some tweets that they really liked. They mentioned my name and all, even though I'm not on Twitter. So someone sent me that, so that was really inspiring, and it was like, okay, I have done justice to my role. So, any catchy comment you went through after the movie was released? Sorry, yeah. Any catchy comment you got to learn from your fans or from anyone on your on your character or about the movie? Catchy comment from fans? Okay, so I got this thing a lot that negative role suits me. Okay. Like, yeah, I mean, negative, I don't know why, but I have some sympathy for negative characters, because if you see कोई भी negative character, उस negative character को बनने के लिए एक back story होती है that people don't know. So there's always a reason someone becomes that. So that is very interesting always to like see why this person has become this इतना extreme level पे. So yeah, I love researching on such things. Why has this happened? Because every thing happens for a reason. So that reason is very important to be, noticed. Sorry. Okay. So how much challenging it was for you to play a baddie on screen? अब कुछ challenges थे आपने face किए to bring Yes, the hype? yes. Yeah. Yeah. So basically, मेरा रोल जो है वो कश्मीरी लड़के का है, और मुझे कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता था, और कश्मीरी लड़के के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था। सो मैं आई वेंट बैक टू 1947, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था। सो उस टाइम से ही कश्मीर का इशू शुरू हुआ था। तो इस कैरेक्टर को जानने के लिए मुझे उसमें उसकी जड़ में जाना जरूरी था कि कश्मीर के लोगों का व्यवहार गवर्नमेंट के तरफ ऐसा क्यों है। सो उस रीजन को जानने के लिए हर स्टोरी के दो पार्ट होते हैं। तो मोस्टली हमें इंडिया का पार्ट पता है, लेकिन हमें उन लोगों का पार्ट नहीं पता। सो माय रिसर्च वाज बेसिकली ऑन दैट पीपल, की उन लोगों का रीजन जानूं। एंड जब मैंने उनके साइड की स्टोरी सुनी, डॉक्यूमेंट्री सुनी, कुछ चीजें पढ़ी, तो कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों के लिए भी हमदर्दी आई। और उसके बाद मेरे 2-3 हैं जो कश्मीर के मॉडल दोस्त थे, तो मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने अपने दादा दादी, नाना नानी जो उनके सुनाते हैं कहानियां, उनके बारे में सुना। तो ये सब चीजें इकट्ठी करके एक वो शकील का कैरेक्टर बना। और मुझे याद है एक सीन था जिसमें जो हमारे हीरो हैं आशीष, को सामने से आते हैं और वो बस स्माइल करते हैं, और उनकी बस स्माइल को देख के मैं इतना ज्यादा इरिटेट और इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आया था मुझे। और वो कोई रीजन नहीं था, बस उसने स्माइल करा था। उस टाइम मैंने समझ लिया कि हाँ, मैं कैरेक्टर में आ गया मैं। Okay.
ठीक है. You little distracted me. Okay. um, so जो भी मूवी नहीं देखे हैं अभी, what you will give some good reasons to them to watch this movie, जो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो. या सो सबसे बड़ा रीजन इस मूवी का ये है कि इवन दो मतलब इसका सबसे पहली बात तो लोगों को हिंदुत्व का मतलब नहीं पता. लोग हिंदुत्व को हिंदुइज्म में जोड़ते हैं, जबकि हिंदुत्व एक जीने का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है. जब हमारे हमारे वर्ल्ड में साइंस नहीं था उस टाइम पे, जो ये ऋषि मुनि और ये सब थे, उन्होंने ज्ञान से विज्ञान का पता लगा लिया था, मतलब मेडिटेशन और इन चीजों से. तो हमें अपने मतलब एक लेवल तक अपनी हिस्ट्री पता है, लेकिन उसके बाद नहीं पता. सेकेंडली, आज का जो टाइम है, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, ये लड़ाइयाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं, उस चीज पे बहुत अच्छी आपको सीख मिलेगी कि कोई भी रिलीजन गलत नहीं होता. हमेशा जो ऊपर बैठे पावर में लोग होते हैं, वो लोग हमारे इमोशन होते हैं, हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं हमारे रिलीजन से, उस चीज का फायदा उठा के अपना फायदा निकालते हैं. क्योंकि इफ यू सी एनी राइट्स एनीथिंग, कोई भी बड़ा लीडर आके सड़कों पे नहीं उतरता. उनके बच्चे सब अच्छे, कॉलेज अच्छे, चीज हर चीज वेल एजुकेटेड, हर चीज है, लेकिन हम अपनी इन चीजों पे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम सही गलत देखना भूल जाते हैं. Okay. Yeah. And thirdly, it's the movie is about friendship, कि कैसे फ्रेंडशिप रिलीजन मतलब रिलीजन से ऊपर जाती है फ्रेंडशिप. क्योंकि फ्रेंडशिप या दोस्ती, कोई भी रिलेशन हो, जो चीज दिल से जुड़ी होती है ना, वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं देखती. एंड सबसे बड़ी बात है ह्यूमैनिटी ओवर रिलीजन. सबसे बड़ी सी इंसानियत ही नहीं होगी तो रिलीजन कहाँ का. मतलब हर रिलीजन, जितने भी दुनिया में रिलीजन है, उसके हर चीज की एक ही जड़ है, वो है इंसानियत. Yes, sir. So yeah. So why did you took this role? Why you felt कि this will? Do you think this role will add value to your acting career? बैरियर नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. एक्टर का काम है एक्टिंग करना और किसी भी किरदार में घुसना. कोई भी, आई डोंट थिंक कि किसी भी किरदार को हम जज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कहानी होती है जो हमें अपना के उसे दिखाना होता है. अगर हम उस चीज में कामयाब है और अगर किसी को शकील को देख के गुस्सा आया होगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया. विलेन को देख के अगर इंसान को हेट्रेड फील ना होना विलेन के लिए, मतलब वो उस पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ा. तो आपने कभी यस सर. नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट मेड यू टू टेक अप दिस रोल. क्यों लगा कि शकील करना चाहिए आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं सच बोलूं, एज एन आउटसाइडर यू गेटिंग अ रोल इन अ मूवी, दैट टू ये छोटा रोल नहीं, काफी इंपॉर्टेंट रोल है. ये चीज मिलना सबसे बड़ी मुश्किल होती है. एंड इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब मैं डायरेक्टर सर करण राजदान से मिलने गया था, तो मैं पूरा तैयार होके गया था, सारे ऐसे मोनोलॉग्स वगैरह याद करके गया था. मैं उनसे मिला, आधे घंटे उन्होंने मुझसे बस बात करी. और बात करी जनरल नॉलेज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इन चीजों के बारे में. एंड मैं वेट करता रह गया. मैं कहा अब एक्टिंग का कुछ कहेंगे कि करके दिखाओ. उन्होंने कुछ नहीं कराया. लास्ट में कहते कि लक्ष्य, मैं एक्टर से एक्टिंग तो निकलवा लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा एक्टर डम हो, तो इंटेलिजेंट एक्टर होना चाहिए. तो उस दिन मुझे लगा कि ये एक मतलब ये इतना आर्टिस्टिक बंदा है, ये मतलब जस्ट नॉट एन एक्टर बट एन इंटेलिजेंट पर्सन इज इम्पोर्टेंट टू बी एन आर्टिस्ट. क्योंकि एक्टर का क्या होता है, एक्टर होता है जो आसपास का ऑब्जर्व करे, आसपास का पता हो क्या चल रहा है. कुछ लोगों को क्या होता है, जस्ट एक्टिंग स्कूल कर लिया, एक्टिंग वर्कशॉप कर लिया, एक्टिंग ऐसे नहीं होती. मतलब जब तक तुम सड़क पे नहीं उतरोगी, जब तक तुम्हें पता नहीं होगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो तुम्हें कैसे एक्ट कर सकते हो. सो उस दिन आई वाज लाइक कि हाँ, इस बंदे के साथ काम करना है. एंड स्पेशली एक डेब्यू था, क्योंकि आप कहीं भी पहुंचना हो, फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ता है. तो दिस वाज माय बिग फर्स्ट स्टेप. So like you mentioned, it was your debut role. So as a newcomer, yes. What all any challenges you faced to get your place in the industry? Challenges, I think honestly, देखो क्या होता है ना कि मार्केट और हर जगह
ये बात होती है कि इसे ये रोल इसलिए मिल गया क्योंकि ये इसका बेटा था या इसने ऐसे ये करवाया वो करवाया, बट आई थिंक इफ यू आर गुड इनफ तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना पागल नहीं है कि तुम्हें रिप्लेस करेगा फॉर समवन हु इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि इन द एंड इट इज बिजनेस। कौन चाहेगा कि किसी मतलब रिलेशन की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो? ऐसा कभी नहीं होता। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि मेरा रोल कितना है, एंड ऐसा कई बार हुआ था कि मेरा सीन नहीं था बट सर एडेड मी टू दैट सीन, मे बी बिकॉज ही लाइक माई वर्क और ही सॉ दैट डेडिकेशन। क्योंकि क्या होता था, चाहे मेरा उस दिन शॉट हो ना हो, मैं हमेशा सेट पे जाता था। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे लगता था कि मुझे हर चीज पता होनी चाहिए, लाइटिंग कैसे होती है, कैमरा कैसे होता है, फोकस वो बीम कैसे होती है, साउंड चेक कैसे होता है, साउंड वाला कैसे होता है, पर्दे के मतलब आई मीन डायरेक्टर के पीछे जो स्क्रीन है वहां कैसे काम चलता है। So I was very curious. So maybe he saw that curiosity in me, and that is it. So क्यों लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए? Honestly, इसके पीछे एक कहानी है, मतलब हर चीज के पीछे एक कहानी है। So honestly मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टिंग में जाऊंगा। मैं दिल्ली में था, मैं मॉडलिंग करता था, मैं रैम्प मॉडल था। So basically कभी भी मुझे कोई कहता था ना एक्टिंग, तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मेरा हमेशा से गोल था इंटरनेशनल मिलान मॉडल इटली वगैरह जाने का। बट देन व्हाट हैपेंड, मेरा एक दोस्त है बचपन का, उसका कजन यहाँ पे काम करता था इन सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी और समथिंग, एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मिलाया उनसे कि मे बी ही कैन हेल्प मी इन समथिंग, एंड उसने कहा हाँ हाँ आई हेल्प यू ये और वो, एंड ही गॉट मी हियर। एंड वो एक एक्टर के घर गया, वो ऊपर से मुझे कॉल करता कि यार मैं भाई को मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई है एंड उन्हें बड़ा पसंद आया तुम, तो मूवी में काम करोगे, एंड अब तुम दिल्ली के बंदे को जो मॉडल है कभी नहीं सोचा वो बोलेगा मूवी में काम करोगे। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मैं अपना सारा बोरिया बिस्तरा मान के आ गया बॉम्बे। मैंने सब कुछ छोड़ के 9-10 महीने लगातार एक्टिंग क्लास, डांस, ये वो हर चीज, और वो इंसान मेरे ना सपनों को एड अप करता रहा कि भाई ने ये सोचा, भाई ने वो सोचा, ये करके, एंड वन फाइन डे आई गेट टू नो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बस पागल बनाया था, सारा वो बनाया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये बंदा इतना पैशनेट है कि ये काम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पैसे देता रहेगा, मुझे करता रहेगा ये सब। फिर मेरे पास 2 चॉइसेस थी, क्योंकि मैंने ये मुझे सपने बुने थे, तो मेरे फ्रेंड्स फैमिली हर किसी को पता था हाँ ये बॉम्बे गया है मूवी करने। मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं वापस चले जाऊं दिल्ली और एक अनदर नाकामयाब बॉम्बे स्टोरी बन जाऊं, जो एक आउट ऑफ बॉम्बे स्टेट्स में लोगों का वो होता है कि बॉम्बे जाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, या तो वो बन जाऊं, या इस चीज को मैं रियलिटी बना। फिर मैंने फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करा, क्योंकि 1 साल हो गया था और मेरी प्रोफाइल पुरानी हो गई थी, फोटो पुरानी हो गई थी, लुक अलग हो गया था। फिर मैंने दोबारा स्क्रैच से शुरू करा, मैंने फोटोज भेजनी शुरू करी, मुझे थोड़े बहुत शूट मिलने शुरू हुए। फिर मैंने ये हिंदुत्व के लिए मैंने फोटो भेजी थी, उसमें से एक फोटो सर को काफी पसंद आई थी। वो कश्मीर, उस टाइम में क्लीन शेव रखा था, स्ट्रेट है, कश्मीरी लुक लगा उन्हें। फिर मुझे उन्हें बुलाया, फिर वो पूरा सर पूरा हुआ। सो पूरी कहानी है। So, what was the best moment from Hindutva for you? Best moment from Hindutva was actually हिंदुत्व। एक तो वो था जो मैंने आपको बताया स्माइल वाला। उस दिन मुझे असलियत में पता चला था कि वो कैरेक्टर फील होना क्या होता है। दूसरा मोमेंट मैं कहूंगा इट वाज आफ्टर द शूट। मैं दिल्ली में था, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज वाचिंग अ मूवी विद माय फ्रेंड एंड मेरे पास एक वीडियो आती है, एंड सर ने एक अप्रिशिएशन वीडियो भेजी थी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम शायद एडिट कर रहे थे, कलर ग्रेड हो रहा था मूवी का, एंड उन्होंने एक मुझे वीडियो भेजी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, ये बस एक फर्स्ट स्टेप है। एंड मुझे लगा कि एज एन आउटसाइडर या आपका जिसका सर से मेरा कोई फायदा नहीं है कि मुझे वो कुछ बोले कि जिससे उनका कुछ फायदा निकले। आज लाइक अगर मैं उन पे इम्पैक्ट बना पाया हूँ तो मैंने मतलब अगर मेरे डायरेक्टर ने मेरी तारीफ कर दी तो मेरे लिए यही आई-फाई, यही ऑस्कर है फर्स्ट मूवी में। सो ये चीज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, बिगेस्ट अचीवमेंट
वो डाल के हाईलाइट डाली हुई है जिसमें सर कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम करा। एंड इवन अभी म्यूजिक लॉन्च पे सर काफी खुश थे और उन्होंने यही कहा था ऑन कैमरा कि ये अभी शुरुआत है इनकी, अभी आप देखना कितना आगे जाएंगे। तो अगर आप अपने डायरेक्टर का भरोसा जीत गए, और वो भी इतने एक्सपीरियंस इंसान का जो शायद मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं क्या मेरे माता पिता भी बच्चे थे उस टाइम पे जब से इंडस्ट्री में, तो वही चीज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। So your camaraderie with your Hindutva co-stars. So how well you bonded with the co-stars on the sets of Hindutva? एक्चुअली पहले कुछ दिन तो सबके ऑकवर्ड जाते हैं, हर कोई थोड़ा मैं एक्टर हूँ वाले जोन में रहता है कि मैं एक्टर हूँ। बट देन धीरे धीरे मतलब सब नॉर्मली होते हैं, हमको लगता है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज निकल ही जाती है नॉर्मल इंसान वाली है। जो अंकित राज है उनके साथ मेरा काफी अच्छा वो बॉन्ड है, वो बड़े भाई जैसे हैं, क्योंकि वो भी एक मॉडल बैकग्राउंड से है, तो हमारे पास काफी कॉमन चीजें होती हैं बात करने को। एंड वो काफी गाइड भी करते हैं, काफी खुश भी होते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम मैं मेरा कहीं खुश होते हैं तो मैं इस चीज से बहुत खुश होता हूँ कि वो अप्रिशिएट करते हैं। क्या होता है ना, जब एक फील्ड में होते हो तुम, तो किसी को आगे बढ़ते थे दूसरा बंदा जेलस फील करता है यार ये तो अभी आया है और इसे ये मिल रहा है, तो लेकिन उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत सुलझे हुए, बहुत पता है उन्हें कहाँ जाना है, और हमेशा छोटे भाई की तरह ट्रीट करा है। और आज भी हम बात करते हैं, मतलब आज भी हम कुछ भी हो, मूवी देख के आए थे हिंदुत्व, तो एक दूसरे का मजाक बना रहे थे, ये देख कैसा लग रहा था, ये देख क्या था। So बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है इन सबसे। Okay, moving on. So how your life changed post earning youngest Mr. India title? मिस्टर इंडिया, यंगेस्ट मिस्टर इंडिया मेरा बचपन से ही सपना था। मुझे था कि मिस्टर इंडिया हर कोई बनता है, लेकिन यंगेस्ट मिस्टर इंडिया एक ही हो सकता है जो सबसे छोटी उम्र का बनेगा। तो 2018 से और कोई वो चीज नहीं ले पाया। मुझे याद है मैं 19 साल का था जब मैं कंपटीशन में गया, और सारे लड़के 28 साल 27 साल के थे। ऑनेस्टली वो सब मुझसे लुक्स और पर्सनालिटी में बेटर थे, ऑफ कोर्स एज डिफरेंस से। बट देन जो चीज से मैं स्टैंड आउट हुआ वो था क्वेश्चन आंसर राउंड। क्या होता है ना, हर इंसान अपनी बॉडी ट्रेन करता है लेकिन अपना माइंड ट्रेन नहीं करता। बॉडी पर्सनालिटी से तुम आंखों को अच्छे लग सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास माइंड है ना, तो तुम दूसरे इंसान के दिमाग पे इम्पैक्ट डालोगे कि वो कभी भूलेगा ही नहीं तुम्हें। तो सबसे पहली बात क्या होती है ना कि कहीं भी जाओ तो अपने प्लस पॉइंट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम अनबीटेबल हो। तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग अपना करके गया था। मिस्टर इंडिया से पहले आई वाज स्ट्रगलिंग वेरी मच फॉर मॉडल वर्क आल्सो, बट देन ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग, हर किसी का रवैया बदल जाता है। मुझे याद है मैंने 11th क्लास में स्कूल में मैंने एक लोकल शो करा था, मिस्टर नॉर्थ इंडिया था, दिल्ली में होता है वो हर साल। तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सारे बच्चों को, एस्पायरिंग बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, ग्रूमिंग फीस ले लेते हैं एक छोटे से वो बुक करके। वो मेले सब कुछ था। मैंने अपना 15 दिन स्कूल से छुट्टी लेके, मुझे याद है मैंने इतना डेडिकेटेड होके मैंने तैयारी करी थी, लेकिन उसमें मैं टॉप 50 में भी नहीं आया था, टॉप 50। Okay. और जब मैं मिस्टर इंडिया जीता था, अपना मिस्टर इंडिया जीता, तो उसी शो को जहां मैं टॉप 50 में नहीं आया था वो जज करने गया था मैं। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत चीजें बदली हैं, उसके बाद लोगों का रवैया बदला है, काम आना आगे से शुरू हुआ है। तो एंड सबसे बड़ी बात जो आज है, एज एन एक्टर, बट अलॉन्ग विद दैट जो एक कामयाब एक्टर कामयाब होने के बाद सीखता है, बीट पर्सनालिटी, बीट ग्रूमिंग, बीट योर एवरीथिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो चीज मैं पहले से सीख के आया हुआ था, जो मेरे लिए एड अप हो गया। So what's real Lakshya like? Real Lakshya is like honestly very dedicated. I love being around people जो बहुत ambitious हों, जिनके साथ बैठ के मैं ग्रोथ की बात कर सकूं, मैं आगे बढ़ने की बात कर सकूं। और मुझे अब भी, चाहे वो कामयाब हो ना हो, मुझे अब भी उन लोगों के साथ बैठने में बहुत मजा आता है जिनके सपने होते हैं, क्योंकि जिसके सपने होते हैं ना वो एक दूसरे की समझ पाता है।
तो इवन अगर कोई इंस्टाग्राम पे मुझे करता है ना कि सर कि कैन यू हेल्प मी इन दिस, हेल्प मी इन दैट, व्हाट शुड आई डू, पहले तो मैं इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ उसका, क्योंकि ना आपको इंसान के इंस्टाग्राम से पता चल जाता है कि वो कितना सीरियस है अपने काम के लिए। मे बी वो सही नहीं है, लेकिन अगर वो कोशिश कर रहा है ना, तो मैं आई लव गाइडिंग देम, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी उनके जगह था जहां मुझे लगता था कि कोई हल्का सहारा दे दे, मैं बहुत आगे चले जाऊंगा। तो एंड दूसरी बात, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है मुझे जानवरों से। मैं कहीं भी कोई, जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। एंड मेरे पास खुद यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, एंड मेरे पास दिल्ली में 5 डॉग्स हैं। सो मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है और बहुत ज्यादा सिंपैथी है मुझे जानवरों के प्रति। सो जानवर। एंड थर्डली, मैं 12th क्लास तक अपने स्कूल के बैंड में था, तो मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। मैं ड्रम्स, कीबोर्ड्स, गिटार तीनों बजा सकता हूँ, तो म्यूजिक में काफी रुचि है। तो इसलिए म्यूजिक, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कुछ भी हो, मुझे म्यूजिक ज्यादातर मैं कार में, आपको हमेशा मेरी कार में लाउड म्यूजिक मिलेगा, और वो भी इंडियन म्यूजिक खासकर, जैसे AR रहमान का हो गया या क्लासिकल म्यूजिक हो गया। तो ये सब है मेरी लाइफ में, और खासकर फिटनेस की। फिटनेस मुझे शायद याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने जिम कब मिस करा था। मतलब अगर मैं थका भी हूँ तो मैं बस जिम में जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे जिम जाना है, वो एनवायरनमेंट, वो मेडिटेशन है मेरे लिए। कुछ भी लाइफ के इम्पोर्टेंट मुझे डिसीजन लेने होते हैं ना, मैं हमेशा ट्रेडमिल पे या वर्कआउट करते हुए सोचता हूँ, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज्यादा रिलैक्स होता हूँ। So you are a poet too, right? Yes, 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 I write poem too. बट अगेन उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे स्टोरी है एक ब्रेकअप की, जिसने इतना मुझे झंझोड़ दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये चीज समझ में आया कि बॉलीवुड झूठ नहीं बोलता कभी भी। तो बॉलीवुड में होती है ना लाइन है कि टूटे दिल से संगीत निकलता है, या जब तो थोड़े थोड़े हो जाते हैं, तो वो ऑनेस्ट, वो सही में है। मतलब अगर इंसान अपनी नेगेटिव फीलिंग या अपने इमोशंस को आर्ट में कन्वर्ट करना सीख जाए ना, तो उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो जो मैं फील करता था वो मैं वर्ड्स में लिख देता था, तो वो क्या होती थी, वो एनर्जी भी निकल जाती थी, वो पोएम अच्छी भी बन जाती थी। तो ये चीज में मैं सीख गया। उस फेज से मैं ये सीखा कि नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, और उस एनर्जी को अगर तुम अपने काम में लगा दो ना, तो वो इतना अनबीटेबल, वो इतना अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी चीज इमोशन से होती है ना, चाहे हेट्रेड हो चाहे प्यार हो, वो हमेशा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वो सच्चे फीलिंग्स होती है। So what is next for you? Like, if you would like to talk about your upcoming project? Yes, I can't name, but yes, I am starting my shoot from mid-November for my next movie. And basically there are 2 movies. So one is with a very, very well-known actor Ajkal, and so I can't reveal that because वो चीज बहुत confidential है. But yes, 2 movies I'm doing. One is in November and one is in January 1st. Okay. So that is why I had to cut down weight काफी ज्यादा, क्योंकि जो मेरा अगला रोल है वो टेकी का है, टेक्निकल का है, Okay. और वो रोल मुझे कालों की वजह से मिला। So तो उन्होंने कहा कि you have to cut down, क्योंकि कोई भी टेक्निकल गाय या ऐसे जो होते हैं गेमर टाइप, वो लोग अच्छी बॉडी वाले नहीं होते, पतले से लड़के होते हैं, तो उन्हें वो चीज सीखी। हाँ। So lastly, message to your fans. तो यार मैं ना, सबसे बड़ी बात, मैं ना फैन वर्ड मुझे पसंद नहीं है। फैन इज समथिंग आई लव कॉलिंग देम माय सपोर्टर्स, माय वेल विशर्स। सो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इफ आई कैन, यू आल्सो कैन डू एनीथिंग। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर आप मेरी 10th की फोटो देख लोगी, पतला सा लड़का, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट, किसी लड़की से बात तक नहीं, लड़की से बात तो छोड़ो, मेरी स्कूल की टीचर ना मेरी पार्टनर बना देती थी लड़की, तो मैं हमेशा ना ऐसे थोड़ा साइड होके बैठता था, मतलब इतना ज्यादा वो होता था मेरा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, बस एक विश्वास होना चाहिए। स्टार्टिंग में कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बस एक इंसान का विश्वास जरूरी होता है, वो खुद का होता है।
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो लोगों का विश्वास अपने आप आता जाता है, उस टाइम तो हमें पता होता है वो विश्वास इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो। So, sir, this might be a out question, but since Diwali is round the corner, any Diwali plans? Diwali plans, actually not. इस बार I won't be going home. I have called my dad here, mom here. So I am very excited for my next movie actually. So मेरे दिमाग में उसके अलावा कुछ तो चलता नहीं है, मैं पूरे टाइम वही उसके बारे में सोचता रहता हूँ. And also I love reading books. बुक से क्या होता है, मैं एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि कभी भी मैं प्रेप कर रहा हूँ किसी भी चीज के लिए, मैं एक बुक पढ़ता हूँ. उससे क्या होता है, हमारा दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है ना कि हम बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए फोकस करना. तो वो मेरी एक फोकस प्रैक्टिस भी होती है. So, okay, sir. So, before we कोई end, कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है. सो आई बी जस्ट होम ईटिंग गुड फूड एंड थोड़े बहुत पटाखे जरूरी है. सो यस. एंटरटेनमेंट से जुड़े ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करें.